Hello students, good morning to all of you. Here I am Satyavir Singh speaking here, and today I will teach you one important topics of physics first in 12th class, that is Coulomb law. Coulomb law in Hindi you can say Coulomb, Coloumb, Coulomb, Coulomb's law. It is very important topics, guys. The numerical fundamental start from this numerical, and believe in me so much that the numerical portion in physics is very important, and before the numericals we have to understood some basically articles and formulae, some many things and direction something. When you study about any article, then you must have to understand what is the basic condition and what is the basic rule to apply in any numerical, because in examination, in board examination, so many questions come, depends on numericals and articles. It's something difficult, but when you will study they will become very easy. Okay, it's my experience I'm sharing with you, that in the starting we have to clear article. i'm writing here I'm writing here article. No, first of all we have to learn theory. Okay, theory first topic, then article, then numericals three. And so many person they used to say that you can only clear your article, so then you can study your theory and numerical. And some students told, sir please teach us only numericals. So they don't know, without theory, without articles, they can't do the numericals, because numericals and theory articles, they three are very important portion for understand the physics. So three all very important. So now I'm telling you that you should not skip any things here. Okay, because three all the chapters, sorry, three all the topics are very important here. So first of all, what is this is the important topic, because in physics there is some numericals articles, but we didn't study about articles numericals, but now this is the first article, then we will solve some numericals. Okay, then the exactly physics start from here. Otherwise we only study in previous videos only theoretical, and theoretical is very easy, and in exam of physics theory is come very less. Okay, then articles and numericals, it is very mandatory, it is very must to understand. Okay, so let's get started without delay any further. Okay guys, दिस इज द नोट इम्पोर्टेंट. समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल, लगता है क्लियर बात है ना. समान प्रकृति के आवेश मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, उनके बीच में कौन सा प्रतिकर्षण. विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है. पता हमें इस बात का. बल का मान कूलॉम के द्वारा किया जाता है. देखिए जो तुम्हारे प्लस प्लस आवेश हैं ये कहाँ जाएंगे, ये दूर भागते हैं एक दूसरे से. माइनस माइनस है, इनका भी ऐसे रहता है क्योंकि ये भी सेम है. लेकिन अगर तुम अपोजिट कर दोगे जैसे कि मान लीजिए ये प्लस और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इनसे मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा के, यहाँ दिखा देता हूँ मैं, इन रेखा को मिलाने वाली रेखा के पास आ जाएंगे. इनके बीच ये यहाँ पे एक फोर्स लग जाएगा अट्रैक्शन वाला. क्लियर. लेकिन अगर प्लस प्लस होते हैं तो ये अपनी मिलाने वाली रेखा से ये इधर को मुड़ जाता है और ये इधर को मुड़ जाता है. ठीक है, ध्यान रखना आपको. और ये माइनस है, ये माइनस है, तो इनको मिलाने वाली रेखा से ये भी दूर हट जाता है. तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ आर, यहाँ भी एफ आर, यहाँ भी एफ आर जो दूर हटा, और यहाँ का लग रहा है एफ ए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्लियर, ये बात तो पता लगी होगी. लेकिन अब ये बताओ मुझे बात, इसने कूलॉम ने क्या बताया, तो मैं बता देता हूँ. कूलॉम का
मेन कॉन्सेप्ट है क्या, गुलाम जी ने ये बताया है। देखो जैसे कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनके बीच में जो बल है चाहे वो आकर्षण का हो, अब यहाँ तो पक्का पता लग जाएगा किसका है, आकर्षण का। क्यों? क्योंकि यार ये क्या आवेश अपोजिट है यार, सिंपल सी बात है ना। तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट्स अट्रैक्शन ड्यू टू अपोजिट चार्ज। क्लियर? ओके। अब इनके बीच में कोई डिस्टेंस भी होगी, कितनी डिस्टेंस वो अट्रैक्ट मतलब कर रहा है, यहाँ तो केवल एक कंडीशन आ रही है किसकी, अट्रैक्शन की। क्लियर? यहाँ कंडीशन केवल आ रही है अट्रैक्शन की, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में मैटर आ रहा है कि यार अट्रैक्शन की तो है, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी एक, और ये चार्ज कैसा, वैसे चार्ज को बेसिकली प्लस क्यू और माइनस क्यू, मतलब प्लस क्यू या माइनस क्यू दो प्रकार के तो होते ही हैं। तो इसको मैंने मान लिया Q1, इसको मान लिया मैंने Q2। तो इन्होंने क्या बताया कुलाम ने, देखो कुलाम ने मैं बताया, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। कुलाम के छोटे छोटे दो नियम थे। नंबर एक नियम क्या था कि जो इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, और यहाँ कौन सा लग रहा है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि आकर्षण, तो मैं आकर्षण बोलूंगा, यानी कि एफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन दोनों आवेशों के, Q1 Q2। अब तुम सोच रहे हो माइनस क्यों ना लिया, मतलब ये माइनस का यूज नहीं लेते बट ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये जो फोर्स होता है इनके बीच में, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इनके गुणनफल के, गुणा करके जो आता है उसे कहते हैं गुणनफल। गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। द बिटवीन फोर्स ऑफ द अपोजिट चार्जेस is directly proportional to the product of the charge. Okay, this, so this is the very important number one. And second rule very simple, the force between two charges is indirectly proportional to square of the distance of between, okay, between them। तो जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बस ये छोटा सा रूल है, अब इन्हें मिला के मतलब इनको लिख दो ऐसे। ठीक है, बी कैन रिटर्न एज, मतलब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ए सेम है, एफ ए सेम है, एफ ए ये साइन भी सेम है। अब ये Q1 है और ये कितना Q2 है, और अपॉन में कितना आर स्क्वायर है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें वैसे ही बता रखा कि अगर तुम्हें ये कांस्टेंट हटाना है, क्या करना है तुम्हें, अगर तुम्हें ये हटाना है ऐसे, ये साइन प्रोपोर्शनल का यही वाला समान जो भी है, तो यहाँ पे आपको एक वो लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगा दो। कांस्टेंट का मतलब सी लिख दो, के लिख दो, कुछ भी लिख दो, बहरहाल कुछ भी लिख दो यहाँ पे। चलो सी लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ओके गाइज, सी मतलब कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है, ये समानुपाती कांस्टेंट है। ठीक है, इनका ध्यान रखना। तो के क्या है, जहां सी बराबर स्थिर स्थिर वैद्युत स्थिर वैद्युतांक स्थिर वैद्युतांक स्थिर वैद्युतांक, क्योंकि ये स्थिर अवस्था में चल रहा है, ये क्या आवेश स्थिर है ना, तो स्थिर वैद्युतांक है सी। तो आपको पता लगा होगा। अब यहाँ पढ़ लेते हैं, मेन डेफिनेशन पे आते हैं। देखो इस नियम के अनुसार दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाले बल का मान कूलाम के द्वारा निकाला जाता है। ये वाली बात तो हमें पक्का समझ में आ रही है कि दो कोई आवेश होंगे, उनके बीच में बल, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या फिर वो रिपल्सन का हो, किससे निकालते हैं, कूलाम ने बताया इसके बारे में। और कूलाम का जो मैथमेटिकल प्रोसीजर अप्रोच है उसको हम डिस्कशन कर रहे हैं, और आप ठीक से बने रहिए और अपना दिमाग बहुत तेज होता है बच्चों। ठीक है, तो इस दिमाग का यूज करें, ना कि इसे बचाएं। ठीक है, आपके अंदर इतना दिमाग है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, चलो देखो, तो आप ये मत सोचो कि दिमाग में जो मान लेते हैं ना गलत हो जाए तो गलत ही होता। अब देखो ये सही बात है ना यहाँ पे। अब हम कुछ ही पढ़ते हैं, जो बड़े बड़े इंसान हैं वो कोई बड़े बड़े इंसान पहले बन के नहीं आए, वो कुछ करा उन्होंने। देखो इस नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, देखो
जो परिमाण का गुणनफल, मतलब कि दो आवेश हैं उनकी गुणा करके समानुपाती, और जो उनके बीच की दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बस यही तो बात लिखी मैंने यहाँ पे। ये कौन सा रूल बताया मैंने तुम्हें? फर्स्ट, और ये क्या आंसर होता है? सेकंड। अब इनको कंबाइन कर दिया, मैंने भी कंबाइन किया है, तो कंबाइन करके एफ एफ, देखो यहाँ पे क्या मैंने लिखा था? एफ ए। क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? एफ ए। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स था, क्लियर हो गया था, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस थे, अपोजिट चार्ज थे। बट यहाँ बताओ यहाँ कौन सा? देखो ये इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं। Q1, ये पॉइंट ए है, इस पे क्या चार्ज रखा है? Q1। ये पॉइंट क्या बी है, इस पे क्या चार्ज रखा? Q2। तो बिंदु ए पर कौन सा आवेश है? Q1 है। बिंदु बी पे क्या चार्ज है? Q2 है। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है। आपको ये फिगर समझ में आ गई होगी। बस इतनी समझने की बात है। तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, देखो बच्चे यहाँ पता नहीं लगे, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि प्लस का है माइनस का, ये प्लस का माइनस का। तो जब नहीं पता तो आकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण का बल, और प्रतिकर्षण का बल हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लगने वाला बल, चाहे वो आकर्षण या प्रतिकर्षण। इसलिए इन्होंने शो नहीं करा कि एफ ए या एफ आर। तो बस ये लिख दिया कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। यहाँ पे बिल्कुल रटिए मत थ्योरी को, इसे आप सूत्र से याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एफ समानुपाती 1/r स्क्वायर, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कंबाइंड कर रहे हैं हम इसे, एड कंबाइंड। तो कंबाइंड करने पे क्या? एफ एफ सेम है, Q1 Q2 ऊपर है और आर स्क्वायर नीचे है। और देखो ये साइन मैंने कितनी बार बताया कि इसको जो ना हम हटाते हैं बच्चों, ठीक है, पता है ना आपको? ये आपको पता है कि इस साइन को हटाना पड़ता है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। जो ये सी लगा दिया, सी का मतलब क्या? कुलाम नेतांक। हाँ, कुलाम का नियम है ना, तो कुलाम नेताम रख दिया इसका नाम, ठीक है। और वैसे ही मैंने क्या बताया था? स्थिर वैद्युतांक, ये वाला, तो ये भी कह देते हैं इसे, या कुलाम नेतांक भी कहते हैं, क्लियर। जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो वायु माध्यम क्या होते हैं? देखो जैसे वायु है, वायु माध्यम है। निर्वात है, वायु का मतलब जहाँ वायु होती है। निर्वातित माध्यम क्या होता है? निर्वातित, तो निर्वातित का मतलब, निर्वात होता वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब वो होता है जहाँ पे वायु नहीं होती, उस स्थान को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। आप समझ लीजिए। तो इसका मान बता दूंगा मैं। वैसे वायु व निर्वात के लिए के का मान बता देता हूँ आपको। के का मान कितना होता है पता है? के का मान होता है हमारे पास, के का मान होता है 9 × 10⁹, ठीक है। ये होता है के का मान। अभी डिस्कशन करेंगे इस पर लोग हम। अभी वैद्युशीलता होती है, परमिटिविटी। तो वैद्युशीलता को रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, इससे करते हैं, इस वाली इसे कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ठीक है। किसी माध्यम का वह गुण, देखो माध्यम क्या होता है? या तो हवा का हो सकता है, या फिर किसी भी चीज का हो सकता है माध्यम, जहाँ पे वायु नहीं है। निर्वात का भी हो सकता है, या कांच का भी हो सकता है। A to Z किसी माध्यम हो सकता है, ठीक है। तो ये माध्यम पर डिपेंड करता है सी कूलाम का, जिसके कारण वह दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रभावित करता है, ठीक है। तो परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन्स होती है, जो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को इफेक्ट कर रही है, क्लियर। चलो हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको क्या होती है परमिटिविटी। अब इसके बात करते हैं माध्यम की वैद्युशीलता को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन, इसे कैसे बनाते हैं? मैं ठीक से बना देता हूँ, ऐसे बनाते हैं, इस तरह से मत बना देना, ये गलत है। ये बनाते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन, ये लिखते हैं एप्सिलॉन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो होता है सी का मान जो बताया था मैंने आपको, सी का मान ये भी होता है बच्चों 4πε, और इसका मान क्या होता है? 9 × 10⁹ ये दोनों वैल्यूज के इक्वल होती है कांस्टेंट के, ठीक है। एवं निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की होती है, मैं इस साइन को यहां बना देता हूं ठीक से, एप्सिलॉन नोट। देखो ये क्या होता है? एप्सिलॉन, और यहाँ 0 लगा देते हैं तो ये हो गया नोट। तो ये लिख रहा है एप्सिलॉन नोट, 0 नोट कहते हैं यहाँ पे, क्लियर। अब 1/4πε इक्वल टू, ध्यान रखना ये निर्वात एवं वायु के लिए है, निर्वात और वायु के लिए और निर्वात के लिए। अब तुम्हें पता लग गया निर्वात और वायु क्या होती है। जहाँ वायु वहाँ वायु माध्यम, जहाँ वायु रहित नहीं होती है वो। अब ये इसका वो हो गया मैटर, ठीक है। अब ये इसका फॉर्मूला हो गया, मैं समझ में आ गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अभी तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है, मैं कर देता हूँ क्लियर। देखो सीधा
यहाँ देखो अच्छे तुम, क्योंकि ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये बताओ तुम्हें मैंने क्या बताया अभी, जो फोर्स है कूलाम के द्वारा, क्या बताया अभी, बताओ बताओ क्या बताया कि उन दोनों जो दो आवेश हैं उन दोनों आवेशों का गुणनफल समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसे हटाते हैं, इसको स्टैंड क्या मतलब क्या लगाते हैं, सी, जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं, Q1 और एक Q2 बटा आर स्क्वायर। क्लियर। अब सी का मान कितना होता है, मैंने बताया था सी बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्लियर। और के भी होता है, के Q1 गुणा Q2 अपॉन कितना, आर स्क्वायर। तो एक काम कर देते हैं, यहां से ये तुम्हारा फॉर्मूला क्लियर बन गया। ठीक है। अब यहां वायु बै, ये के क्या है, ये परावैद्युतांक है। के बराबर क्या है, के क्या है, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक माध्यम पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कैसे माध्यम में रखा। तो वायु निर्वात के लिए, वायु में निर्वात के लिए के बराबर क्या उतना होता है, 1 होता है। ठीक है। तो अगर वायु निर्वात है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹। लेकिन अगर वायु माध्यम नहीं रहा, कुछ और रहा, तो भैया के की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अब हमें नहीं पता क्या होगी, वो रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगी वैल्यू इसकी। क्लियर। क्योंकि ये वायु और निर्वात के लिए केवल ये हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकती है, ये कट कर दिया मैंने। ठीक है। आप इसको ध्यान रख लीजिए, ये हमारा कूलाम का रूल है। ठीक है। जो कांस्टेंट होता है सी, इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है। के एक परावैद्युतांक है जिसका मान क्या होता है, 1 होता है वायु निर्वात के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ई आर बराबर, ये आपेक्षिक वैद्युशीलता होती है। तो आपेक्षिक वैद्युशीलता क्या होती है, आपेक्षिक वैद्युशीलता जो होती है ना, ई आर रिलेटिविटी परमिटिविटी क्या होती है, मैं बता देता हूँ, देखो सिंपल है ये, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। देखो कैसे, ये क्या है, ये निर्वात की, देखो जहाँ पे ये आ गया, ये निर्वात की होगी 0, ये होगी माध्यम की। तो माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युशीलता कहते हैं। ठीक है। और बस इसको ये मल्टीप्लाई में लिया है, इसको अपॉन में 1 मान के, और ये आ गया तुम्हारा। दो आवेशों को निर्वात में रखने पर लगने वाला बल, देखो मैंने अभी तुम बताया कि दोनों आवेशों को निर्वात में रख देंगे तो यहाँ क्या होता है, के होता है। तो के की जगह क्या है, यहाँ पे 1 रख दिया उन्होंने, पीछे मैंने बताया था। ठीक है भी, अगर किन्हीं दो आवेशों के मध्य माध्यम उपस्थित होने पर, तो भैया माध्यम अगर उपस्थित होगा वहां पे, तो वैद्युत बल, तो ये वाला मतलब फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। माध्यम के लिए मैंने बताया था, अगर कोई माध्यम है ना, तो माध्यम के लिए क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन यूज करते हैं। लेकिन अगर निर्वात है, निर्वात की वैद्युशीलता होती है, निर्वात की वैद्युशीलता होती है एप्सिलॉन नोट, और माध्यम की क्या होती है, एप्सिलॉन। तो देखो यहाँ पे केवल ये अंतर है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि निर्वात के लिए 0 मानते हैं। ठीक है। और ये वाला इसके लिए माध्यम के लिए क्या मानते हैं, ये, क्योंकि भाई हमें नहीं पता ना, तो इसलिए ये यहाँ पे 0 नहीं लगाते। ठीक है। ये थोड़ा सा अंतर है इसमें, बाकी सब सेम है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, देखो ये जो कॉन्सेप्ट लिख रहा है, ये बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अर्थात दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के मध्य उपस्थित होने वाला लगने वाला वैद्युत बल का अनुपात आपेक्षिक वैद्युशीलता कहलाता है। मतलब ऐसा है कि अगर तुम इसको डिवाइड करते हो ना, ये FM और FV को डिवाइड करते हो, तो क्या मिलेगा आपको, इनने समीकरण 1 को 2 को डिवाइड कर दिया। मतलब ये किसकी है, ये तो निर्वात में है, वैक्यूम में, किसमें, वैक्यूम, B4 क्या, वैक्यूम। अब आप डिवाइड करो इसे, चलो चलो यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, FB बटे FM आएगा। ठीक है, मैं यहाँ काट देता हूँ डिवाइड, देखो इसे। तो FB कितना है वैक्यूम में, 1/4 वैक्यूम, और 0, और गुणा कितना, Q1, दोनों आवेश है, अपॉन कितना, आर स्क्वायर। और अब डिवाइड करता हूँ कितना,
एफ, और यहाँ क्या आएगा, मीडियम, कोई मीडियम है, माध्यम को ले दिया, तो माध्यम में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, ठीक है, आवेश वही रहता है पोन आर। तो इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इससे 4 पाई से ये कैंसिल हो गया पूरा, क्या बचा, एफ बी बटा एफ एम कितना हो गया, ये जाएगा ऊपर, वो आएगा नीचे, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होती है, ये क्या होती है बताओ, ये क्या होती है बताओ, ये होती है ई आर, एप्सिलॉन आर, ये होती है आपेक्षिक गतिशीलता, ठीक है। तो ये यही लिखा है डिवाइड करके, आफ्टर डिवाइडिंग, आफ्टर डिवाइडिंग, आप इन्हें समझते चलिए, समझ में आ जाएगा, आफ्टर डिवाइडिंग, ठीक है। चलो ये वाली बात तुम्हें क्लियर होगी है ना। अर्थात देखो, जब तक इन चीज़ों को नहीं समझेंगे आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ने बैठा करें तो दिमाग से ये निकाल देगा कि हम इनको नहीं पढ़ सकते, ओके। चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे लाइफ से डायरेक्ट ये कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या देखो, पता लग गया हमें कि भाई जो वैक्यूम में लगने वाला फोर्स है और मीडियम में लगने वाला फोर्स है, उनका रेशियो क्या होता है, जो होता है रिलेटिविटी इम्पिडेंस के बराबर होता है, परमिटिविटी के बराबर होता है, सॉरी, हो गया क्लियर। आपेक्षिक वैद्युशीलता का मान माध्यम पर निर्भर करता है, हाँ बिल्कुल करता है, डेफिनेटली करता है, क्यों, क्योंकि निर्वात के लिए क्या होता है, निर्वात और वायु के लिए 1 होता है, और भैया हमें नहीं पता कौन सा माध्यम, तो उसके लिए क्या कर दिया, इन्फिनेटिव कर दिया। एनी मीडियम हो सकता है, एनी मीडियम, एनी मीडियम, और ये किसके लिए होता है, एयर एंड वैक्यूम, क्लियर, एयर वैक्यूम के लिए। जैसे यहाँ निर्वात के लिए कितना 1, वायु के लिए क्या लगभग बनी है ये भी, जल के लिए कितना 81, देखो जल के लिए क्या हो गया 81, कांच के लिए कितना हो गया 5 से 10 हो गया, पीवीसी के ये क्या होता है, पीवीसी पाइप होता है, पीवीसी पाइप जो हमारे घरों में नलों में होता है पाइप, और जो छतों में जो पावर फिट करता है, लाइटिंग करते हैं, धातु में इन्फिनेटिव होता है भाई देखो। तो इसलिए क्या हो गया, आपेक्षिक वैद्युशीलता का जो मान होता है वो 1 से बड़ा और बराबर और इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है, इन्फिनिटी से कम होता है मगर, और बराबर भी होता है, जैसा कि धातु का सर्वाधिक होता है, क्लियर। जल की परावैद्युतांक 81 होता है, देखो परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है, के, परावैद्युतांक, एक एक शब्द को नोटिस करते चलिए, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसमें बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बोर्ड पे कुछ चीज़ें मैं भूल जाऊँगा और आपको नहीं समझा पाऊँगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को समझ लीजिए, ये सबसे बेटर है, और आपके पास सेम नोट्स और मैं सेम पढ़ा रहा हूँ, क्लियर। निर्वात में बल का मान प्रबल होने के कारण, देखो निर्वात में बल का मान प्रबल होने के कारण NaCl ठोस अवस्था में होता है, हाँ हमने पढ़ा है NaCl जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। लेकिन जब ये सॉलिड होता है तब तो इसके पॉजिटिव है Na पॉजिटिव और Cl माइनस नहीं ब्रेक होते, जो ब्रेक करते हैं। लेकिन जब इसे जल में घोल देते हैं, सॉल्विंग इन वाटर, तो वाटर में सोल्विंग करके इन्हें क्या बन जाता है, तो फिर ये ब्रेक हो जाता है, कैसे, NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस, इस पर 2 प्रकार के आवेश आ जाते हैं, पता ना मैं इस बात का। तो भाई जब इसे जल में घोला, ये कॉमन सोल्ट तो है, क्या है कॉमन सोल्ट, तो जब इसे जल में घोला तो जल में घोलने से इसके बॉन्ड ब्रेक हो गए, ठीक है, इसके जो बीच में बॉन्ड बन रहे थे वो ब्रेक हो गए। इसलिए रीजन है इसका कि नमक में जो है ना, नमक में जब ये ठोस स्टेट में होता, सॉलिड स्टेट में होता, तो इसमें करंट कैरिंग नहीं होता, क्लियर। लेकिन एक एक बात सुन लो, 1 मिनट, लेकिन जब इसे जल में घोल देते हैं तो इसमें Na प्लस Cl माइनस हो जाता है, मतलब चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाता है। आवेशित का मतलब क्या होता है कि मान लो ये है, इसे मैंने रगड़ा, अब इस पर थोड़ी देर में क्या आ गया, आवेश आ गया, तो वो क्या हो गया, आवेशित हो गया, ठीक है। हाँ, कोई भी चीज जो ना, बहुत सारी चीज ऐसी है जो न्यूट्रल होती है, लेकिन अगर उनके साथ फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाए या उनको आपस में रगड़ा जाए तो पक्का भी चार्ज हो जाती हैं, जैसा आपको पिछली बार बताया गया कुछ वीडियोस में, ठीक है। चलो देखो, तो यही बात है कि ये कहना चाह रहा है कि जल की परावैद्युतांक 81 होती है, क्यों, ये रीजन होता है। तो निर्वात में बल का मान कितना होता है, निर्वात में प्रबल बल का मान
होने के कारण NaCl ठोस अवस्था में उपस्थित होता है, परंतु इसे जल में घोल देने पर NaCl और प्लस Cl माइनस आयनों के मध्य लगने वाले बल का मान 1/80 गुना अधिक हो जाता है। अतः NaCl जल में घोल देने पर Na प्लस एंड Cl माइनस आयनों में विभक्त हो जाता है, क्योंकि बल का मान अत्यधिक दुर्बल हो जाता है। आप ही बताओ, क्या वो जब वो ठोस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, तब उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं नमक में, फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा नहीं होगा? लेकिन जब उसे जल में घोल दे, क्या फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा? फिर तो फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना। तो उनके बीच लगने वाला बल जो है ना, आयनों के मध्य घोल देने पर आयनों के मध्य वाले बल का मान 1/80 गुना हो जाएगा। आप समझ रहे ना बात? ये आप समझ रहे ना, 1/80 गुना कितना कम हो जाएगा, कितना दुर्बल हो जाएगा। तुम सोच रहे हो 1/80 नहीं, 1 के 81 भाग हो जाएंगे। जैसा आप ये एक आपके पास ब्रेड है और आपने 2 लिख दिया, इसका मतलब क्या, एक ब्रेड है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया आपने। अब एक ब्रेड है उसके आपने 4 हिस्से कर दिए, कितना हो गया? 1/4। समझ गया आप बात? अगर तुम्हारे पास एक रोटी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो 1/8 पता लग गया आपको? तो 1 के 8 हिस्से हो गए, इस टाइप से। तो यहाँ पे जब वो उसे पानी में घोल देना, तो जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बल था बड़ा वीक हो गया, 1/80 गुना हो गया, 81 गुना हो गया, ठीक है, जो कि बहुत दुर्बल हो गया, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि वो क्यों होता है, ठीक है, ऐसे 81 होता है, ताकि वो उसके मॉलिक्यूल क्योंकि मैंने बताया ना तुम्हें कि जो 2 प्रकार के आवेश होते हैं उनके बीच में फोर्स होता है। तो जब ये जुड़ा हुआ था तो उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स था, इसलिए वो ठोस था। लेकिन जब उसे पानी में घोल दिया तो उनके बीच में जो आवेश प्राप्त हो गए, अब वो दूर दूर हो गए, तो उनके बीच की दूरी बढ़ गई, जिससे कि आवेश कम हो गया। क्लियर? अब देखो, कूलाम का नियम परिस्थिति पर लागू होता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? जो आवेश का मात्रक है, चलो आवेश का मात्रक तो वही होता है, कोई सा ही बल हो उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन ही होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। जैसा लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, एज यू नो ऑल। अब कूलाम की परिभाषा, एक कूलाम की परिभाषा क्या होगी? देखो, एक कूलाम की परिभाषा का मतलब है कि एक कूलाम की परिभाषा का मतलब है कि उसमें जो ना दूरी क्या होगी, दूरी क्या होगी? दूरी 1 मीटर होगी, ठीक है। कूलाम जो है ना, ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है, ध्यान रखना इस बात का। कूलाम कौन सी पद्धति का मात्रक है? एमकेएस। तो जो दूरी होगी वो किस में होगी? मीटर में होगी, तो इसलिए मैंने 1 मीटर रखा है। यदि दो एक समान आवेश निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे जाए, 1 मीटर की दूरी पर, और वो एकांक हो, मतलब उनकी वैल्यू क्यों 1 1 हो, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो ये कितना बल लगाएगा? 9 गुणा 10⁹ न्यूटन का बल लगाएगा, ठीक है। सिंपल बात है। जैसे कि मान लो आपके पास 2 फोर्स हैं, Q1 है, एक Q2 है। इनमें Q0 मान लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, Q1 Q2 मान लो आप उसे, ठीक है। ये इनके बीच की दूरी, ये बिंदु A है, इस पर Q1 आवेश है, इस पर ये बिंदु B है, इस पर Q2 आवेश। इनके बीच की दूरी कितनी है? इतनी। कूलाम का बल, कूलाम का नियम क्या होता है? 1/4πε इंटू Q1 गुणा Q2 बटे कितना r²। इसे क्यों और मान लो यहाँ पे, ये कांस्टेंट होता है ना ये, क्योंकि ये वायु निर्वात के लिए मान लूंगा मैं यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। चलो, वायु निर्वात के लिए क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी के की। क्लियर? अब यहाँ पे एक काम करो, एकांक आवेश, इनकी वैल्यू कितनी मान लो इसकी आवेश की? Q1 की भी 1 है, और साथ में Q2 की 1 है, और इनके बीच की दूरी जो है वो ही 1 है। अब रख दो यहाँ 1 1 1 1, क्या आ गया बताओ? F = 1/4π, और ये 1 × 1/1। अब इसकी वैल्यू क्या बताई थी मैंने? 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी? 0 क्यों लगाया? क्योंकि ये निर्वात के लिए है, माध्यम के लिए 0 नोट नहीं लगाते। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁹ तो 9 गुणा 10⁹। इसका मतलब आप समझ गए? इसका मतलब ये है कि जब दोनों आवेश एकांक हैं, एकांक का मतलब उनके मान कितने? 1 1 हैं। एक कूलाम है, एक कूलाम C1C, एक कूलाम, एक कूलाम, और उनके बीच की दूरी क्या? 1 मीटर है। तो उनके बीच में लगने वाला कौन सा बल है? इतना बल लग रहा होगा, चाहे वो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। मैं चलो क्लियर कर देता हूँ, ये प्लस प्लस के दोनों। तो यहाँ पे क्या, ये
आर रिपल्सन फोर्स लगेगा यहाँ पे, एफ आर। मुझे लगता समझ में आ गया होगा। ठीक है, पक्का, डेफिनेटली। चलो, अब यहाँ पे कुछ यूनिट होती हैं, देखो ये लिख रहा है यहाँ पे यूनिट। तो जैसे मान लीजिए ये म्यू है, म्यू होता माइक्रो, इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻6। एक होता पीको, पी 1 × 10⁻⁻12, ओके। और एक होता मिली, एम मिली, इसकी होती 1 × 10⁻³ मीटर मीटर मीटर। अब ये बताओ आप ही, अगर यहाँ पे वन म्यू सी है तो 1 × म्यू की क्या रख देंगे, म्यू का मतलब क्या होता है 10⁻⁻, म्यू का मतलब होता है 10⁻⁶। बस सी का सी में बचा रहा है। ये क्या है, ये नैनो है, नैनो कुलाम, एन नैनो कुलाम, नैनो का मतलब है 10⁻⁹। पी पीको कुलाम, ये इनकी यूनिट चेंज करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो म्यू माइक्रोन, माइक्रोन म्यू माइक्रोन, ये क्या होता है मिली, ये क्या होता है माइक्रोन, माइक्रोन माइक्रोन, ये होता है पीको। तो यहां से हम चेंज कर सकते हैं। अदर यूनिट, अदर यूनिट, चलो छोड़िए इसे, अदर यूनिट के बारे में आप बस ये पढ़ लीजिए, फिर इसमें से पढ़ लीजिए आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं। कुलाम के नियम का सदिश रूप। अब कुलाम के नियम का सदिश रूप थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों, थोड़ा अलग है। कुलाम का सदिश रूप देखो, सदिश का मतलब क्या होता है, जहां पे वेक्टर लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास यह एक फोर्स है वाला, मैंने आपको बताया, देखो हर चीज की दो फॉर्म होती है, मतलब हर चीज की तो खैर नहीं होती है, लेकिन अधिकतम जो सदिश राशि होती है, जैसे फोर्स है क्या सदिश, सदिश सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका कलाम का सूत्र क्या होता है 1/4πε। बच्चों ये मैं वायु के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ जीरो भी लगा दिया, के भी लिख दिया। ओ यार चलो, के का मान 1 रख देंगे क्योंकि वायु के लिए कर रहे हैं ना। Q1 और ये Q2 बटे कितना r²। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, Q1 Q2 बटे r², 1/4πε0 के। और ये वायु के लिए तो के की जगह क्या रखा जाएगा, बिल्कुल 1 रखा जाएगा, एकदम रख दो फटाफट। क्या रखा है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये रख दिया, देखो क्लियर। अब इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में हमें लिखना है भाई, हमें इसकी वेक्टर फॉर्म बनाना। तो वेक्टर फॉर्म बनाना बड़ा इजी है, आप वेक्टर लगा दीजिए इसके ऊपर, तीर का निशान जो होता है वेक्टर। और वेक्टर मतलब बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। मैं ये 1/4πε0 और इंटू ये कितना Q1 और ये Q2 अपॉन कितना r²। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, यहाँ पे r जो दूरी है ना उनके बीच की दूरी, जो दो आवेश थे उनके बीच की दूरी है ये। जैसे कि मान लो दो आवेश, देखो यहाँ पे समझ लो इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कौन सा आवेश है, ये प्लस का आवेश है। ये कौन सा आवेश है, चलो ये प्लस का आवेश मान लेता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। ये कौन सा आवेश है 1, ये कौन सा आवेश है 2, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, बोलो बोलो बोलो, कितनी दूरी इनके बीच की दूरी। चलो मैं बता देता हूँ क्या दूरी इनके बीच की। इनके बीच की दूरी है r, क्या इनके बीच की दूरी r है। देखो Q1 Q2 इनके बीच की दूरी मान ली मैंने r। क्लियर हो गया, क्लियर मैटर इतना। अब देखो जब ये दूरी इतनी है तो अब इसकी डिस्टेंस कुछ होगी, इसकी जो, देखो अगर हम इधर से मानेंगे दूरी, अगर इधर को मानते हैं, कैसे इधर को मानते हैं, तो r2 होगी, ठीक है इधर को। लेकिन अगर हम इधर को मानते हैं दूरी, तो r12 होगी। समझ लो आप इसे ध्यान से देखो। ओहो ये गलत है, कुछ नहीं बच्चे, कुछ नहीं है। ये इधर को नापी दूरी मैंने, तो 1 से 2 की ओर, इधर से नापी तो 2 से 1 की ओर, और यार तो डायरेक्शन भी चेंज होगी, ध्यान रखना इस बात का। और यहाँ पे लगा दो कैप, क्योंकि इनकी यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इन पे बल लगेंगे। ये बताओ यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, तो बल बच्चों लगेगा दूसरे चार्ज पर पहले आवेश के कारण। दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज के कारण बल कौन सा लगेगा, तो प्लस प्लस, तो भैया इधर को लगेगा बल,
वो भी कौन सा, एफ वेक्टर और दूसरे दूसरे पर पहले के कारण, ऐसे लगाएंगे। इधर भी कौन सा लगेगा, इधर पहले पर एफ वेक्टर और पहले पर दूसरे आवेश के कारण, यानी कि दोनों आवेश एक एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। आपको समझ में आ गई ये वाली बात। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कैप और लगा दो आप, इसका मतलब कुछ नहीं है, ये वेक्टर लगा दो, डायरेक्शन को शो कर रहा, डायरेक्शन किधर है इसकी, किधर डायरेक्शन लग रही है इसकी, ठीक है, और कुछ नहीं है। और इसका आर कैप, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, इकाई सदिश, जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है, मतलब जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। अब देखो, तो अगर इस फॉर्मूले को चेंज करना तुम्हें अब, तो पहले मैं एक काम कर देता हूँ, इस वाले बल को निकालता हूँ, पहले क्या निकालता हूँ, F12 को निकालता हूँ। तो क्या आएगा, ये सब कुछ सेम रहेगा, और एक Q1 Q2 पे क्यों ना प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। दूरी बताओ कौन सी लेंगे बच्चों में, इसमें बताओ, F12 के लिए डिस्टेंस क्या लेंगे, F12 के लिए डिस्टेंस तो जो लेंगे हम, वो कौन सी लेंगे बताओ। F12 के लिए डिस्टेंस कौन सी लेंगे, तो जो डिस्टेंस लेंगे हम यही लेंगे, कौन सी, F12 है, इधर वाले लेंगे, तो 1 2 और यहाँ लगाएंगे हम ये स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, ये ऐसे लिखा रहता है, और ये आर कैप और ये कितना 2 1, ये केवल डिस्टेंस को बता रहा है, इसकी किधर को लग रहा है बल, ये ठीक है। ये जो एक बस एक सेकंड रुको बच्चों जरा, एक मिनट। देखिए यहाँ पे जो 2 1 है, ये Q1 F21 2 1, देखो ये 1 2 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम क्या निकालोगे, F वेक्टर 2 1 है, 1 4 पे एप्सिलॉन नोट, अब 2 1 पे निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, Q1 Q2 सेम रहेगा, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख देते हैं, आर कैप, और यहाँ 2 1 है तो यहाँ पे 2 1 रहेगा, ठीक है। आपको शायद ही समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैंने देख लिए, इस पर थोड़ा डाउट क्लियर कर लेने वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इससे भूल रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, यहाँ पे ये तो सही है, लेकिन यहाँ 1 2 रहेगा या 2 1 रहेगा, ये थोड़ा सा मैं देख के बता दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब देखिए, कूलाम का सदिश रूप ये हो चुका है, ठीक है। ये केवल कुछ नहीं है, ये जो आर वेक्टर लिख रहा है, इसका मतलब केवल डायरेक्शन है, ये केवल दिशा को बताता है कि इसकी फोर्स की दिशा किधर लग रही है, बस। देखो एकांक सदिश है, जिसकी दिशा सदैव आवेश से परीक्षण आवेश की ओर निर्धारित की जाती है, आवेश से परीक्षण आवेश की ओर निर्धारित की जाती है। परीक्षण आवेश क्या होता है, जिस पर हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे एक ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि यार ये जो कूलाम का नियम होता है, न्यूटन का नियम का पालन भी करता है, ठीक है। तो न्यूटन का नियम का पालन कैसे ये करता है, तो बस ये रखा, ये निकाला फोर्स, ये निकाला। अब ये जो डिस्टेंस है, ये क्या दोनों बराबर हैं परंतु विपरीत है, रख दिया। अब बस इनको विपरीत रख के F21 इक्वल टू क्या आ गया, और ये किसका नियम है, न्यूटन थर्ड लॉ है, बताया था ना, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, every action has opposite and equal reaction, that is called न्यूटन थर्ड लॉ, ओके, न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये कूलाम का नियम न्यूटन थर्ड को पालन करता है, ठीक है। और ये अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जहाँ पे बहुत सारे बल हैं, जहाँ पे 1 मोर देन फोर्स हैं, नहीं पहले बता देता हूँ, जहाँ पे बहुत सारे चार्ज हैं, जब बहुत सारे चार्ज होंगे तो उनके द्वारा क्या लगेंगे, बल भी ज़्यादा लगेंगे। तो वहाँ पे अध्यारोपण का मतलब ये होता है कि उनको जोड़ के और कुल बल निकालना, तो बहुत सारे आवेश हैं, तो इनके द्वारा बहुत सारे बल लगेंगे, अब उनको सब कुछ जोड़ देंगे, तो ये कहलाता है अध्यारोपण का सिद्धांत।
इसे हम एक काम करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल। अध्यारोपण आप कर लेना इसको, जो दिक्कत आएगी मुझे बता देना, ठीक है। ये कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल केस है। अगर इसको नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना आप, ठीक है। अब इसके बाद में हम न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल रहेगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आ गए, टोटल न्यूमेरिकल है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है। आपको न्यूमेरिकल जो करने केवल 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 एनसीईआरटी करना है, क्योंकि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है और अच्छे हैं और सिंपल भी है, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है इतने वो। तो फॉर टुडे गाइज आई एम गोइंग,